Hello, hello, mic check. Dear students, I hope I am clearly audible to all of you. If I am clearly audible, just write yes in the chat box. Okay, perfect. અને બધા સ્ટુડન્ટ છે પોતાનું નામ છે એ રીનેમ કરી દો. રીનેમ કઈ રીતે? ફર્સ્ટ નેમ ઓફ ધી બેચ. For example, I see here Darsha Ambalia. Then she needs to write EMA1 space Darsha space Ambalia. આ રીતે બધા સ્ટુડન્ટ્સ પહેલા પોતાનું બેચનું નામ, then first name, then last name. આ રીતે બધા રીનેમ કરી દો. We are about to start the session within next 2 minutes.
Friends who have joined late, kindly see the chat box and rename yourself. I see still many students who haven't renamed themselves. First name of the batch, then your first name, then last name. There are 2 to 3 people who are joined in the name of mobile, Oppo, Vivo, something. Just rename yourself. Good evening, dear students. I hope I am clearly audible. Just write yes in the chat box. We are starting with the session. Please write in the chat box if the voice is clearly audible. Okay, thank you all. આપણે તમે જે 2 વર્ષથી જે પ્રિપેરેશન કરતા હતા જે એક્ઝામ માટે એ એક્ઝામની ફાઇનલ ઘડી છે એ હવે આવી ગઈ છે. The session is divided into 3 parts as of now. I am taking out the introduction part. After that, Kamlesh Nagar sir would take over, and after that, Vipin sir would take over. Firstly, students, તમારા બધાને ટાઈમ પેપર 1 ને પેપર 2 એડમિટ કાર્ડ ઓલરેડી તમારા બધા પાસે આવી ગયા હશે. પેપર 1 પેપર 2 બંનેના ટાઈમ તમને ઓલરેડી ખ્યાલ હશે, બટ તેમ છતાં 7 o'clock એ સેન્ટર છે એ ઓપન થઈ જાય છે. તમારે બધાએ બિફોર 7:30 મોડામાં મોડું 7:30 પહેલા તમે સેન્ટર ઉપર પહોંચી જાવ એવું ખાસ જોવાનું છે. 8:30 ના તમારું કમ્પ્યુટર એલોટમેન્ટ છે એટ 8:30 AM, અને 9 o'clock થી 12 o'clock સુધી આપણું ફર્સ્ટ પેપર છે. પછી પેપર 2 એમાં 2 o'clock એ કમ્પ્યુટર એલોટમેન્ટ છે, અને 2:30 to 5:30 માં તમારે પેપર 2 માં અપિયર થવાનું છે. તો ઓબ્વિયસ છે ગરમીના દિવસો વધારે છે એટલે એ 2 કલાક દરમિયાન આપણે ફ્રૂટ, એપલ લઈએ, એની સાથે સાથે લીંબુ શરબત, અથવા તો આપણે કહીએ કે એપિટાઇઝર હોવું જોઈએ. બહુ એમાં વધારે પડતું જમવાનું આપણે ન કરે જેથી બપોર પછીના પેપરમાં ડિઝીનેસ ના લાગે. તમારે શું કેરી કરવાનું છે? થિંગ્સ ટુ કેરી. નંબર 1 ઓબ્વિયસલી એડમિટ કાર્ડ. નંબર 2 ઓરિજિનલ આઈડી પ્રૂફ. નંબર 3 પેન, પેન્સિલ, વોટ એવર યુ ફીલ. નંબર 4 ટ્રાન્સપેરન્ટ વોટર બોટલ બધાએ ખાસ કેરી કરીને જવાનું છે. આ ખાસ ભૂલાઈ ન જાય, ગરમીના દિવસો છે. નંબર 5 નો ડ્રેસ કોડ ઇઝ ગિવન, બટ ઇફ પોસિબલ ખોટા જે છે કે મોટા મોટા બટન્સ હોય, લોકેટ્સ હોય, બ્રેસલેટ્સ હોય, અને એવા ખોટા મોટા બટન વાળા કપડા કે આવું કંઈ આપણે પહેરીને ન જવું જોઈએ. એકદમ સરસ લૂઝ કોટન ક્લોથ્સ આપણે પહેરવા જોઈએ. અને એ તો કહેવાની જરૂર જ નથી કે કોઈ પણ પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ, ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ કે સ્માર્ટ વોચેસ આવું કંઈ અવેલેબલ ત્યાં નથી. રફ વર્ક માટે તમને સ્ક્રેમ્બલ પેડ ત્યાં જ મળશે, અને એમાં તમારે તમારું નામ લખવાનું છે, અને લાસ્ટમાં છે એ તમારે તમારી સાથે જે છે તમે લાવી શકો અથવા સેન્ટર વાળા પોતે રાખી તમને ત્યાં જઈને ખ્યાલ આવશે. I would start with one very important case. કદાચ કોકની સાથે ક્યારેક પાસ્ટમાં પર્સનલી વાત થઈ છે, but there was one student in જામનગર branch from 2018-2020 batch, કોરોના બેચ હતો. અહીંયા આપણે કદાચ બ્રાન્ચ રાજકોટ, જામનગર કે ઈશ્વરિયા મેટર નથી કરતું, બટ આપણી સ્કૂલના પાસ્ટ એવા કોઈ સ્ટુડન્ટ છે કે જે પેપર છે એ ક્રેક કરી લે
તો એની પાછળ જવાબદાર છે એની અવેરનેસ ડ્યુરિંગ ધ પેપર. હું તમને એક અત્યારે સ્ટુડન્ટની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું. હિઝ નેમ ઇઝ હર્ષ કાનાણી. એ સ્ટુડન્ટને જે તે વખતે તમારામાંથી કદાચ મેજોરિટી સ્ટુડન્ટનો કેસ છે થોડોક એના જેવો કેસ હતો. એને કેમિસ્ટ્રી જરાય ગમતું નહીં. ફિઝિક્સ અને મેથ્સના દમ ઉપર જ વધારે માર્ક્સ લેવા ગમે. 2020માં જાન્યુઆરીની અંદર જેઈ મેઇનનો ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ થઈ ગયો. માર્ચમાં 21 માર્ચથી કોવિડ આવ્યો, એટલે જસ્ટ બોર્ડ એક્ઝામ પૂરી થઈ અને તરત જ કોરોના સ્ટાર્ટ થયો. એને ખબર હતી કે કેમિસ્ટ્રીમાં બોર્ડમાં માર્ક્સ ઓછા આવશે. હિઝ એસીપીસી મેરિટ રેન્ક વોઝ ક્લોઝ ટુ 800, એટલે ખબર પડી જાય કે ધીરુભાઈ કે નિરમા કે ડીડીયુ જીઆઈએ એવું કશું જ એને મળતું નથી. ધેન આફ્ટર એમના પપ્પાએ કીધેલી એક વાત મને આજની તરીકે યાદ છે કે સર મેં મારા દીકરાને એવો રેડી કર્યો છે કે દેશના ગમે એ ખૂણે કરિયર માટે ભણવા જવાનું થાય તો આપણે જવું છે. હી અપિયર્ડ ઇન ઓલ ધ એક્ઝામ્સ, એસઆરએમ, વીઆઈટી, કોમેટ કે બિટ્સ, બધી જ એક્ઝામ્સ એમને આપી અને બધામાંથી જે છે કે બાય ધી એન્ડ ઓફ જુલાઈ ઓગસ્ટ ત્યાં સુધીમાં મેઇન્સનું ફેઝ 2 છે એ કમ્પ્લીટ થવાની ડેટ હતી કે ઓગસ્ટ સુધીમાં મેઇન્સ એક્સટેન્ડ થતા થતા 2020માં કમ્પ્લીટ થશે. એડવાન્સની એક્ઝામ 3 ઓક્ટોબર 2020 સુધી પોસ્ટપોન થાય છે. તમે એક વસ્તુ ચોક્કસ વિચારજો, એક એવો સ્ટુડન્ટ છે કે જેને મેઇન્સ ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટથી એ સારી કોલેજ નહોતી મળતી, જેને મેઇન્સના સેકન્ડ એટેમ્પ્ટ સુધી રાહ જોઈ હતી, વચ્ચે એસઆરએમ, વીઆઈટી, કોમેટ કે બધું જ આપ્યું હતું, બટ ધાર્યો ઓપ્શન નહોતો મળતો. તમારામાંથી મેજોરિટી સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જેને ઓલરેડી એક વસ્તુ છે એ તમારી પાસે અવેલેબલ છે. યુ હેવ વન થિંગ. કોકની પાસે જે છે કોકના પીઆર 99 છે તેને ધીરુભાઈ મળે છે, કોકના પીઆર 98 છે તો કદાચ એને નિર્મા મળે છે. બાકી બધાને જે છે કંઈક ને કંઈક તમારી પાસે બેકઅપ ઓપ્શન છે. એ સ્ટુડન્ટ પાસે કશું જ નહોતું. તેમ છતાં કહેવાય ને કે વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન આટલા રિજેક્શન ઝેલ્યા પછી એમ થયું કે હવે આપણે એડવાન્સ પેપર છે તો એકવાર પ્રોપરલી આપી આપીએ. લાસ્ટ 1.5 મંથની અંદર સરસ રીતે પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન્સ છે એનું રિવિઝન કર્યું, પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન્સના ડાઉટ્સ છે ટીચર્સની સાથે પૂછ્યા, અને the way he attempted the paper would be shared in this particular session. So it's a request, it's a disclaimer for all the students કે તમે એકાંતમાં એક અલગ રૂમમાં એકલા તમે બેસીને સાંભળતા હોય અને મેક શ્યોર કે તમે આ સેશનનું એકો એક સેન્ટેન્સ, એકો એક સ્લાઇડ તમે સરસ રીતે જોઈ હોય. અત્યારના નોટ કરવામાં કે એમાં ટાઈમ ન બગાડતા એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેશન આ પીપીટી અમે તમને બધાને છે તમારા ગ્રુપમાં છે એ અમે મોકલી આપીશું. તો અત્યારના પૂરેપૂરું ફોકસ અત્યારે સેશન ઉપર કરજો. કાનાણી હર્ષના જેડબલઈ મેઇન ફર્સ્ટ એટેમ્પના પર્સન્ટાઇલ હતા 96.6 અને સેકન્ડ એટેમ્પમાં હતા 96.9. એ સ્ટુડન્ટે 3 ઓક્ટોબર 2020ના એડવાન્સની પરીક્ષા આપી અને એડવાન્સમાં એમના જે રેન્ક છે એ ઓપન કેટેગરીમાં રેન્ક હતો 4521. His admission was done into IIT Palakkad Computer Science. એમને જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એડમિશન લીધું, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, 23 આઈઆઈટીમાંથી એક આઈઆઈટી પલક્કડ કેરેલામાં આવેલી છે એ મને એ દિવસે ખબર પડી જ્યારે એનું એડમિશન થયું. આઈઆઈટી પલક્કડ કમ્પ્યુટર સાયન્સ કેરેલામાં. અત્યારે 2024માં ઓગસ્ટ મહિનાથી he has already got his placement, 40 lakhs per annum salary, અને he is going to Tokyo, Japan in August 2024 and એને પ્રી પ્લેસમેન્ટ ઓફર પીપીએ ઓલરેડી મળી ગયું છે. So this is her success story. આપણે એ દિવસે પેપર કેવી રીતે અટેમ્પ્ટ કર્યું, કઈ રીતે આપણે આગળ વધીએ છીએ, અને મેઇન તો એવું થાય કે પ્રિપેરેશન બધાની એક જેવી છે, બટ તમારે એડવાન્સમાં બધા क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना. आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आपको केवल सिलेक्शन और राइट क्वेश्चन को चूज करके वो 50 to 60% जो पेपर है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए. So without wasting any further time, I would request Kamlesh Nagar sir to take over the session hereby further. Thank you all and wishing you all the best for JEE Advanced 2024 on behalf of Modi sir, all the faculty members and entire team Modi School. I wish you all the best. Over to Kamlesh sir. यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ऑडिबल है सबको? मैं ऑडिबल? चैट बॉक्स में दो चार लोग लिखें भी. ओके.
डन। ठीक है, तो आज अपन जो है एग्जाम में क्या क्या 3 आवर्स ऑफ जो हमारा टाइम रहेगा 9 to 12, उस 9 to 12 में क्या क्या चीज़ें अपन रिलेटिवली मतलब बाकी लोगों से अपन बेटर कर पाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये पीपीटी जो है ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करें कि एंड तक जो है इसको आप देखें, क्योंकि लास्ट में पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन स्किप करना होता है, किस तरीके से सिलेक्शन करना होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि 30-40 मिनट जो है साथ बनाए रखें। ओके, तो सबसे पहला जो स्लाइड है वो आपको दिख रहा होगा, ये लास्ट 5 ईयर का डेटा है, जिसमें मोस्टली जो अपने काम का है ज़्यादातर लोगों के हिसाब से वो 1001 हो गया। 1001 वाला जो रैंक है इस पे आप लोग ध्यान दें। 5000 जो है ये हो गया, और उसके बाद जिन भी लोगों का ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी है और 98 या 99 पेयर से ऊपर बनी है, उन लोगों का ध्यान एक 10,000 वाले फिगर पे भी होना चाहिए। बिकॉज ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगाने के बाद उनको हो सकता है 5000 या 4000 रैंक की जो है ब्रांचेज उनको मिल जाएगी। ठीक है, 15,000 भी कुछ लोगों के लिए है, मतलब जैसे मान लो उनका जेई मेन में परसेंटाइल बहुत खराब आया, लेट से 97 आया या 96 आया या 97.5 आया, और उनका रैंक 15,000 आ जाता है, और मान लो उनका कैटेगरी ओबीसी है, तो हो सकता है कि उनको आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी रुड़की में केमिकल जैसी ब्रांच मिल सकती है। तो ये सारी की सारी रैंक है। केवल ये 100 वाला जो है वो हो सकता है एक दो बच्चों के हिसाब से रिलेवेंट हो, बाकी सारी रैंक को अपने को ध्यान से देखना है। तो आप देखें इसमें कि 2019 में आप 2019 में आप देखिए 1000 रैंक जो है 55% पे है, फिर नेक्स्ट ईयर 53 है, फिर 58 है, फिर 47 है, फिर 60 है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जनरली मोस्टली 55% के आसपास 1000 रैंक बनती है। आप 2022 में आपको डेटा सडनली गिरता हुआ नजर आया। ठीक है, उसका रीजन मतलब एक रीजन तो ये भी है कि टफ है पेपर। फिजिक्स में थोड़ा सा रिलेटिवली टफ था, और मैथ भी रिलेटिवली टफ था, बट उतना टफ नहीं था जितना लोग बोलते हैं। और जो परसेंटाइल गिरी है या ये जो रैंक गिरी है, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो 2022 वाला बैच है वो बेसिकली पूरा 11th और 12th पूरा ऑनलाइन पढ़ा था। और आपको भी पता है कि यदि पूरा का पूरा एजुकेशन ऑनलाइन होगा तो वो जो एक सफिशिएंट प्रैक्टिस होती है उसकी कमी उसको डेफिनेटली रह जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो है कट ऑफ थोड़ा सा लोअर रहा। ठीक है, बट आप 2023 में वापस से देखिए 61% पे पहुंच गया 1000 का डेटा। 61% एक अच्छा खासा परसेंटेज होता है। बट जिन लोगों ने ठीक से पढ़ाई की है, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस किया है मोस्टली, उनके लिए 60% कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। बिकॉज मैथ में जो है मैथ रिलेटिवली टफ आ रहा है, और उसमें 60-70 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का 60-70 के आसपास मैथ में आ जाता है और बाकी दो सब्जेक्ट भी डिसेंट है, वो 1000 के अंदर रैंक ला सकता है। ठीक है, 5000 की अपन बात करें तो लगभग 37, 40, 31, ये 31 वाला डेटा तो अपन इग्नोर करते हैं। केवल 40 से लेकर 45। तो आप ये मान के चलो कि 2024 में आपके टाइम पे यदि आपका 40 से 45% के बीच में आ रहा है, तो देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अंडर 5000। ठीक है, पेपर थोड़ा आसान हुआ तो 45 चला जाएगा, मीडियम रहा तो 40 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये डेटा जो है थोड़ा सा दिमाग में रहे कि आपको कौन सी रैंक टारगेट करनी है, उसके हिसाब से लगभग परसेंटेज का आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो 2021 में हमने जो है 3 इयर्स का डेटा जो है उठाया है, और कुछ स्टूडेंट जो हमारी जान पहचान में थे, या मान लो किसी दूसरे स्कूल में या किसी कोचिंग में अपने जान पहचान के कुछ बच्चे थे, तो और कुछ अपने यहाँ के बच्चे थे, उनके डेटा लेके अपन ने ये 2021 का एवरेज मार्क्स कितना रिक्वायर्ड है पीसीएम में किस रैंक के लिए, वो अपन ने निकाला। तो ये जो फर्स्ट टेबल है इसमें तो केवल स्टूडेंट उनके पीसीएम मार्क्स और रैंक लिखी हुई है। आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये मिलेगा 1800 के आसपास जो रैंक है, एवरेज रैंक, ये एक बच्चे की रैंक नहीं, एवरेज रैंक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, फिजिक्स में 81 मार्क्स लाया बच्चा, केमिस्ट्री में ऑन एन एवरेज इस रैंक का बच्चा 60 मार्क्स लाता है, और मैथ में ऑन एन एवरेज ये 47 मार्क्स लाता है। ठीक है, वैसे यदि मान लो किसी को 700 के आसपास रैंक टारगेट करनी है, तो उसके पास लगभग ये फिगर रहा 2021 में। 55 नंबर वो मैथ में लाया बच्चा ऑन एन एवरेज, 76 वो केमिस्ट्री में लाया, 91 वो फिजिक्स में लाया। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट ईयर का डेटा देखते हैं, और फिर सारे डेटा में एक सिमिलरिटी रहेगी, इसलिए 3 साल का डेटा अपन ने लिया है। यहाँ से कुछ डेटा है बच्चों का, बच्चों के नाम नहीं लिखे हुए, रैंक और उनके पीसीएम के मार्क्स है। आप ये देखें कि लगभग जिसकी 1800 रैंक है ऑन एन एवरेज,
1800 रैंक है। उसके मैथ में 31 ही मार्क्स है, फिर केमिस्ट्री में 58 एंड फिजिक्स में 61। फिजिक्स भी रिलेटिवली टफ थी, केमिस्ट्री वाज मीडियम लेवल, और मैथ भी टफ थी। बट ये बहुत कम होने का रीजन कोविड है। ठीक है, लोग इसको बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा हाइप होना नहीं चाहिए। ठीक है, बट दोनों साल बच्चा यदि ऑनलाइन पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसकी कट ऑफ में इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से ये थोड़ा कम मार्क्स में बेटर रैंक बच्चों की आ गई। ठीक है, अगेन आप डिफरेंस देखेंगे तो सबसे कम मैथ का रहेगा, फिर केमिस्ट्री का रहेगा, फिर फिजिक्स का रहेगा। वही चीज 2023 में है। 1800 रैंक का जो स्टूडेंट है उसके आप देखिए मैथ में 53 मार्क्स है ऑन एन एवरेज, केमिस्ट्री में 65 है, और फिजिक्स में 78 है। तो लगभग ये रेशियो रहता है, मैथ से लगभग 10-15 नंबर केमिस्ट्री में ज्यादा आएंगे सेम रैंक वाले बच्चे के, और फिजिक्स में जो है 10-15 नंबर और ज्यादा आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और 700 रैंक की बात करें तो 60 नंबर वाला जो है स्टूडेंट है उसकी रैंक लगभग 700 है, केमिस्ट्री में 76 एंड फिजिक्स में 89। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये तो हुआ कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक आ रहा है और पीसीएम का डिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्या रहता है ओवर द पास्ट 3 इयर्स। अब अपन बात करते हैं कि पेपर में अपने को किन चीजों का ध्यान देना है। तो फर्स्ट है कि जाते ही सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि ब्लंडर हो सकता है आपके साथ। मान लो आप ये अज्यूम करके चले गए कि मल्टीपल करेक्ट है और उसमें -2 तो होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट में उन्होंने नेगेटिव मार्किंग दिया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट में उन्होंने पार्शियल मार्किंग रखा ही नहीं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यदि आंसर एबीसी है तो एबीसी पे 4 मार्क्स मिलेगा। यदि आपने ए बी भी लगाया, उसका सबसेट भी लगाया, तो भी आपको -2 मिलेगा या -1 मिलेगा। पहले 2007-8 में जब हमने दिया था उस टाइम पे यही पैटर्न था, और उसके चलते काफी कम कट ऑफ जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया ना, ये चीज जो भूल गया वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, कितना भी बढ़िया सब्जेक्ट हो बाहर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर आप देख सकते हो। जे इज नोन फॉर सरप्राइज पैटर्न एवरी ईयर, हर साल वो कुछ ना कुछ बदलता रहता है, तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इस बार भी कहीं ना कहीं पैटर्न में कुछ बदलाव हो सकता है, तो अपन पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पार्शियल मार्किंग है कि नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल करेक्ट वाले आते हैं। पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं, और पीसीएम तीनों में यदि आप मिला के देखोगे तो लगभग 30-40% तो केवल मल्टीपल करेक्ट है। तो उस सेक्शन में भी आपने मतलब इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत गंदा बिगड़ने वाला है। ठीक है, अब पेपर में जनरली जो पैटर्न आते रहे हैं अपन उनकी बात करते हैं, मोस्टली उन्हीं में से आते हैं। कभी कभी कुछ कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ नए पैटर्न आते हैं, जैसे 2021 में कुछ स्टेम करके आ गया था, पैराग्राफ में 2-2 क्वेश्चन। तो कुछ छोटे मोटे वेरिएशन होंगे, उनके लिए अपन इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। बट मेजरली ये इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। पहला है सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली जेई मेन लेवल के होते हैं। जो करंट जेई मेन आ रहा है उसके हिसाब से मैं बोलूंगा मॉडरेट जो क्वेश्चन होते हैं जेई मेन में, ठीक है, उस लेवल के, या मान लो कुछ कुछ कहीं कहीं पे टफ क्वेश्चन भी आपको नजर आ सकते हैं, बट मोस्टली 4 क्वेश्चन है तो 2 से 3 सवाल तो ऐसे होंगे जो जेई मेन लेवल को मैच करेंगे। ठीक है, और इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की, सिंपल सा रीजन है भाई, 1/4 चांस है करेक्ट होने के। तो यदि मान लो आपका आंसर सोल्व करने पे ए आ गया, तो अब ए आ गया तो फिर ए होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि आपका ठीक ठाक लेवल है, 98-99% का आपका लेवल है, और आपने सॉल्व करके ए आ गया तो बहुत हाई चांसेस है कि वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है इंटीजर 0 से 9। इंटीजर भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 0 से 9 आता है, कभी कभी 0 से 99 आता है। तो 0 से 99 भी उतना टफ नहीं है, 0 से 9 तो बहुत अच्छा है। 0 से 9 तो मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट सिंगल करेक्ट के जैसा है, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा रिस्की है। सिंगल करेक्ट में क्या होता है कि वहां पे ऑप्शन दिख गया, आपका आंसर 3 आ रहा है तो 3 दिख गया। इंटीजर में क्या होगा, आपका आंसर 3 आ गया तो आपको इतना पता है कि 0 से 9 में 3 भी एक ऑप्शन है 1/10 प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मेरा आंसर 3 आया तो मोस्टली सही ही होगा, अदरवाइज तो 10 के बाहर भी आ सकता था, या नेगेटिव भी आ सकता था, या फ्रैक्शन में आ सकता था। तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासे चांस होते हैं। बट ये ध्यान रहे कि इस तरह के क्वेश्चन को पहली बात तो अटेम्प्ट तब करें जब आपको लग रहा है कि नहीं ये इस तरह का टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है और एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है, आराम से सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा, उसको रिकैलकुलेट करें, सारी कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट करें, या एक बार रीवेरीफाई कर लें। रिकैलकुलेट नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो भी आप उसको वेरीफाई कर लें। रीजन क्या है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आया लेट्स से आपका 4, अब उस क्वेश्चन में जो है आप 2 मल्टीप्लाई करना भूल गए, लेट्स से एरिया का क्वेश्चन था और आपने वाई एक्सिस के राइट साइड का कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया 4, आपने लगा दिया, लेकिन उसका तो टोटल एरिया पूछा था, तो आंसर 8 आ रहा है, और 8 भी 0 से 9 के बीच में आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि ज्यादातर लोग इसको सही कर देंगे, तो हमारी एक गलती जो है ना वो अपने पे भारी पड़ सकती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को अपन चेक जरूर करें, खास करके वो क्वेश्चन जो अपने को बढ़िया से आते थे,
कैलकुलेशन प्रोसेस सब पता था, सिली एरर के चक्कर में अपन 4-5 नंबर गवा नहीं सकते, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ यदि आता है तो पैराग्राफ में मोस्टली तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो इसी साल हो सकता है कि पैराग्राफ भी है और साथ में मल्टीपल करेक्ट भी है और पार्शियल मार्किंग भी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि मल्टीपल करेक्ट है तो पैराग्राफ के क्वेश्चन को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अभी फॉर टाइम बिंग, आगे पेपर देखोगे हो सकता है कि आगे कुछ बेटर पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिल जाए। बट यदि सिंगल करेक्ट ही आता है जैसा जनरली आ रहा है, तो वैसे केस में आपको पैराग्राफ एक बार पढ़ना चाहिए। आपको लग रहा है कि नहीं पैराग्राफ कंफर्टेबल लग रहा है, तो जो भी 2 या 3 सवाल है वो कर लो। या मान लो दो नहीं भी आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है लास्ट 10 ईयर का, कि पैराग्राफ के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक सिचुएशन दे रखी है आपको, उस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि पहला सवाल बड़ा आसान होता है, उसके लिए हो सकता है कि सिचुएशन की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं, आपने केवल वो उस क्वेश्चन को देखा वो वैसे ही हो गया। या फिर मान लो आपने मतलब वो जो जो भी पैराग्राफ था उसकी 2 लाइन पढ़ी, उसी से पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन फिर दूसरा तीसरा कई बार क्या होता है, उसका एप्लीकेशन होता है, वो थोड़ा सा टफ करते हैं, उसको ट्रिकी करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों बच्चों को लगता है कि भाई इंटीग्रेशन तो मेरे को ढंग से आता नहीं है, तो उसने इंटीग्रेशन का जैसे पैराग्राफ देखा छोड़ दिया। बट कई बार ऐसा होता है। Dear students, since in this Zoom meeting we have got more than 100 participants અને 100 થી વધારે આમાં આવી નથી શકતા, we have created a YouTube link right away અને તમારા બધાના WhatsApp ગ્રુપ્સ છે સ્કૂલમાં જે નંબર આપ્યો હોય તમે એ WhatsApp ગ્રુપ્સમાં YouTube ની લિંક તમને અત્યારના મળતી જશે વિધિન 2-3 મિનિટ્સ। તો તમારા કોઈ પણ ફ્રેન્ડ્સ જો આ ગાઈડન્સ સેશનમાં આવા ઈચ્છતા હોય ને ન આવી શકતા હોય તો તમે ખાસ કહી અને એમને YouTube ની લિંક સાથે તમે જોડાવવું હોય તો પણ જોડાઈ શકો છો। અગેન ઓવર ટુ કમલેશ સર, સોરી ફોર ઇન્ટરપ્શન। ओके, तो हाँ पैराग्राफ में कई बार मैं बता रहा था कि कई बार फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, सेकंड थर्ड टफ होते हैं या ज्यादा एप्लीकेशन उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसा नहीं कि पैराग्राफ देखते ही दोनों क्वेश्चन छोड़ दिए, पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक बार फर्स्ट क्वेश्चन जरूर देखें, हो सकता है कि वो क्वेश्चन में पैराग्राफ की बहुत ज्यादा नीड ही नहीं हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन मैच दी कॉलम, एमटीसी मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम में क्या होता है कि हमारे टाइम पे मतलब 2006, 7, 8 के आसपास तो ये होता था कि ए का कनेक्शन पी क्यू आर एस से चारों से हो सकता है। मतलब ए के पास कनेक्ट करने के 4 ऑप्शन है, बी के पास कनेक्ट करने के 4 ऑप्शन है, तो इसका मतलब 4 की पावर 4 हो गया। तो वहां पर सही होने की प्रोबेबिलिटी होती थी 1/4 की पावर 4, मतलब 1/256। तो उस टाइम पे क्या है, और उसमें पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती थी, पूरा सही है तो पूरे 6-7 नंबर जितने का भी था, और नहीं सही है तो 0 मार्क्स। तो यदि इस तरह का कुछ आ गया तो आप उसको उसी टाइम पे छोड़ दो, क्योंकि पार्शियल करेक्ट भी नहीं है और मल्टी मैचिंग है, तो उस क्वेश्चन को अभी नहीं करना। लास्ट में यदि टाइम मिला और क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीमली प्रोसीजरल है, उसमें एक भी चीज का आपको डाउट नहीं है, तो ही अपन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बट आजकल जो मैथ दी कॉलम आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि पहले एबीसी 4 ऑप्शन है, पी क्यू आर एस 4 ऑप्शन है इधर राइट साइड में, और फिर वो नीचे एबीसीडी बना देगा इस तरीके से, क्योंकि पहला ऑप्शन पी से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा आर से कनेक्ट हो रहा है, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा। तो वो क्वेश्चन जो है वो रिलेटिवली आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि इधर चार है, तो मैच करने के तरीके तो फैक्टोरियल 4 है, यदि मान लो सिंगल मैचिंग भी है तो भी फैक्टोरियल 4 तरीके से मैं उसको अरेंज कर सकता है ऑप्शन को। लेकिन उन फैक्टोरियल 4 24 में से वो 4 ही ऑप्शन बना रहा है, 4 ऑप्शन बना रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं पे लूप होल छोड़ेगा, और आपने केवल चार में लेफ्ट में चार में से केवल दो की कैलकुलेशन की, आपका काम बन गया। या जैसे मान लो कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मान लो जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें उसने पी क्यू आर एस चारों में अलग दे दिए, तो आप क्या करो, बस लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लो, ये जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन को सोल्व करूंगा, पी आ गया तो एक ऑप्शन आंसर आ गया, बस कंफ्यूजन नहीं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना आसानी से नंबर नहीं दे, इसलिए वो क्या करते हैं, मतलब पी पी दे दिया 2 ऑप्शन में, फिर क्यू क्यू दे दिया, फिर उधर आर 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 एस दे दिया, और फिर एस आर दे दिया, ऐसे करके वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, सो दैट कम से कम 2 ऑप्शन आपको करना पड़े, ठीक है। तो यदि सिंगल मैचिंग है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है मैच दी कॉलम वाला। और मैं अभी आपको एक मार्कशीट भी बताऊंगा, अपने यहीं के एक टॉपर की मार्कशीट है, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसने अटेंड किया, और आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, जो बहुत तरीके से पेपर सोल्व करता है ना वो जनरली अच्छा करता है एग्जाम में, ठीक है। फिर यदि सिंगल करेक्ट है तो इसको सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के बाद में भी ले सकते हैं, मतलब अभी जस्ट पहले अपने पैराग्राफ वगैरह आया था ना, पैराग्राफ इंटीजर, उससे भी पहले ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको वहीं पता लग जाएगा कि पक्का 100% मेरा आंसर सही है।
और ये ऐसे क्वेश्चन को पहले करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सकता है, ठीक है। और ये 2006 वाला तो वही वाली बात है कि भाई 2006 के आसपास मल्टी मैचिंग होता था और उसमें भी पार्शियल मार्किंग नहीं होती थी, तो उस वहां पे क्या स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि ऐसा कुछ है तो उसको स्किप करते फॉर टाइमिंग, सेकंड राउंड में अपन देखेंगे उसको। फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप जो होता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बेसिकली। आंसर नेगेटिव आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, मतलब इंटीजर भी आ सकता है, बड़ा इंटीजर आ सकता है, तो कुछ प्रेडिक्शन नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से रिस्की होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका आंसर आया 474.79 और आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखना है। तो अब इस क्वेश्चन आंसर को देखते आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये मोस्टली गलत ही होगा, इतना एब्सर्ड आंसर आ रहा है, इंटीजर टाइप का आंसर तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, जबकि उसमें लिखा है कि न्यूमेरिकल है तो पॉइंट के आंसर आएंगे, लेकिन पॉइंट में हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। कई बार ऐसा होता है कि आंसर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आता है तो बहुत और अजीब लगता है कि ज्यादातर आंसर तो पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे आ गया। और हो सकता है नेगेटिव सही भी हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसको अपन एक तो एंड में करें, मतलब थोड़ा लेट ही करें। और दूसरा, इसमें अपन कोशिश करें कि जो टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वेक्टर थ्री का क्वेश्चन आ गया, और वेक्टर थ्री में वो बोल रहा है कि पहले ये 2 लाइन है, इनका एक इंटरसेक्शन आ गया पी, फिर 2 प्लेन दे रखे हैं, उनकी एक इंटरसेक्शन लाइन है जिसको एल बोल दिया, फिर उस पी से उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, फिर उसकी किसी तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाल ली। तो अब आपको पता है कि भाई हो तो जाएगा कि प्रोसीजरल क्वेश्चन है, टेंशन कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरह के जो हाईली कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चन है वो आप न्यूमेरिकल में भी करें, डेफिनेटली करें, फर्स्ट फर्स्ट राउंड में करें। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि अब 4 सवाल है तो पहले सवाल को करने लग गए, फिर बाद में पता लगा कि वो तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अजीब आ रही है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, बहुत एब्सर्ड आंसर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले ही सोच लो कि भाई ये 4 में से केवल ये 2 ही करने वाला हूँ, या 4 में से केवल एक ही करने वाला हूँ, और उसी को अटेक करो। फिर सेकंड राउंड में देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तो देखेंगे, स्टार्टिंग में टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट होते हैं और इसमें गलती मिलती नहीं है, मतलब गलती ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर या टॉपिक के सवाल है, वही उन्हीं को पहले करें इसमें, है ना, हर किसी पे ट्राई ना करें। दिस सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड एटलीस्ट टॉपिक ऑफ योर स्ट्रेंथ। जो बहुत बढ़िया चैप्टर है आपके, मान लो किसी को प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा आता है, किसी को क्वाड्रेटिक अच्छा आता है, एक्सेट्रा, तो वो उसी टॉपिक के क्वेश्चन पे पहले अटैक करें, और उसमें भी एक बार पढ़ने के बाद देख लेंगे स्ट्रॉन्ग तो है टॉपिक लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, तो उसको भी छोड़ दो। फिर दिस सेक्शन कैन गिव गुड आउटपुट टू स्टूडेंट विद सफिशिएंट प्रैक्टिस। तो ये तो वो वाली बात है कि भाई आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तो यहाँ से भी आपके नंबर आएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बट जिनकी तैयारी बहुत स्ट्रांग नहीं है वो न्यूमेरिकल टाइप से थोड़ा बचे और एंड में समझ दें, सो दैट आपके मार्क्स मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, और इसमें भी यदि मान लो आपने 4 में से एक ही क्वेश्चन किया है, तो एक बार उसकी कैलकुलेशन रिव्यू कर लो कि कम से कम 4 नंबर तो पक्के हो जाए। ठीक है, फिर है मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट में क्या है कि यदि पार्शियल मार्किंग नहीं है, पार्शियल मार्किंग है, तब तो उसको न्यूमेरिकल के पहले कर दो आप। ठीक है, या न्यूमेरिकल के बाद में भी कर सकते हो, इसलिए मल्टीपल न्यूमेरिकल दोनों थोड़े रिस्की है। तो ये आप आपके हिसाब से, चॉइस के हिसाब से, या मान लो क्वेश्चन की तरफ एक नजर मारी, उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि मल्टीपल पहले करना है कि न्यूमेरिकल पहले करना है। ठीक है, और पार्शियल मार्किंग है तो जो भी आपके बढ़िया टॉपिक है ऑब्वियसली वो वाले तो आपको करनी ही है पहले। और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क ना ले भी, है ना, मान लो आपका 2 आंसर आ गया या एक आंसर आ गया और बाकी 3 में हवा भी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती लगा दिया आंसर, तो -2 मिलेगा सीधा, प्रोवाइडेड कि -2 मार्किंग है। ठीक है, या मान लो आपका ए भी आंसर आ गया था और आपको लग रहा था कि सी जो है वो मतलब 50-70% चांस है कि सी भी सही है, तो सी लगा दिया, नहीं मत लगाओ। आपको 70% भी लग रहा है तो मत लगाओ, क्योंकि 2 ऑप्शन लगाओगे तो 2 मिलेगा, बट वो 30% यदि गलत होगा तो -2 मिलेगा। ठीक है, तो बड़ी रिस्क नहीं ले, मतलब मल्टीपल करेक्ट में खास करके ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर अब ये जो मार्कशीट है, ये मार्कशीट है जो अभी हित सर ने एक स्टूडेंट का नाम लिया था, हर्ष कनानी का, 96.9 पीआरपी उसकी बेस्ट ऑफ 2 में। और वो स्टूडेंट का दिमाग बढ़िया था, लेकिन वही है कि थोड़ा शायद थोड़ा कम पढ़ा होगा, या मान लो उतना अच्छा रटा नहीं होगा, केमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो उसके चलते जो है ना थोड़ा उसको नुकसान हुआ होगा जेईई मेन में। ठीक है, बट एडवांस में आप देखो उसको, सिंगल करेक्ट के 6 क्वेश्चन की 6 के 6 सही, 2020 में 18 नंबर, ये उसी की हैंड राइटिंग है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट में देखो, क्योंकि उसका 97 पीआर भी नहीं था, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था स्टार्टिंग में, तो उसने केवल एक नंबर लिया है बस, बट नेगेटिव एक भी नहीं हुआ। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें भी एक ऑप्शन क्लिक किया, 1 आ गया। नेक्स्ट फिर उसने न्यूमेरिकल वैल्यू की है, न्यूमेरिकल में उसको 2-3 क्वेश्चन आते होंगे, प्रोसीजरल क्वेश्चन होंगे, वो उसने कर दिए, बाकी गलत है, बट न्यूमेरिकल में जनरली नेगेटिव होता नहीं है, उसने सारे क्वेश्चन कर दिए। बट देखा जाए तो यहाँ पे उसको 0 नेगेटिव,
यहाँ उसको 0 नेगेटिव, यहाँ उसको 0 नेगेटिव। तो पेपर 1 में उसका एक भी नंबर नहीं कटा नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं उसका पेपर 2। पेपर 2 में देखो, वापस से न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन आए। दो क्वेश्चन उसको आते थे, दोनों कर दिए। लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए उसने बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, फिर मल्टीपल करेक्ट पे गया, तो इस बार मल्टीपल करेक्ट भी उसने 3 क्वेश्चन सही कर दिए। 3 क्वेश्चन सही कर दिए, क्योंकि पहला पेपर उसका ठीक हो गया, उसको लग गया कि नहीं पहले में मोस्टली मेरे आंसर आ गए थे। और 97 के बच्चे का यदि पेपर बढ़िया चला जाए तो कॉन्फिडेंस तो हाई हो गई उसका। 12 नंबर उसने यहाँ से ले लिए। और फिर न्यूमेरिकल में फिर से उसने 3 तुक्के मारे होंगे, वो 3 गलत हो गए होंगे, बट नेगेटिव था नहीं तो तुक्के मार दिए। और बाकी 3 क्वेश्चन उसने यहाँ पे भी सही कर दिए। ठीक है, टोटल उसके 60 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 120। और जे एडवांस में 60 मार्क्स एक 97 पीआर के बच्चे के हिसाब से बहुत गजब है। ठीक है, फिर ये जो दूसरी मार्कशीट है, ये जो दूसरी मार्कशीट है, ये दूसरी मार्कशीट है अपने लास्ट ईयर, अपने जामनगर में एक टॉपर बच्चा था हर्ष कनानी। हाँ, देव कनानी। और उसका आप देखो पेपर 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, ये लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है, ये लास्ट के 4 क्वेश्चन है पैराग्राफ वाले, मल्टी मैचिंग, मैथ्स कॉलम, सॉरी। मैथ्स कॉलम में वो उस तरह के क्वेश्चन थे, अभी लास्ट पेपर देखेंगे, फिर एक पेपर देखेंगे, वहां पे मैं आपको शो करूंगा। तो उसने सिंगल करेक्ट तो इसमें मतलब थे नहीं, मतलब फर्स्ट पेपर में सिंगल करेक्ट थे नहीं। उसने तीनों ही सब्जेक्ट में पूरे 12 के 12 सवाल सही कर दिए। ठीक है, देखो, जबकि बीच में उसके पास 0 मार्क्स भी आ रहा है, 0 मार्क्स आ रहा है, 0 0 0। ये मोस्टली जीरो वाले या तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हवा ही नहीं लग रही उसको, और या फिर मतलब मल्टीपल करेक्ट है जहाँ पे उसको रिस्क लग रहा है, या मान लो टॉपिक उतना अच्छे से नहीं आता। तो यहाँ से देखो आप, मतलब 12 क्वेश्चन, 36 नंबर केवल एक सेक्शन से कबाड़ लिए उसने। ठीक है, इसलिए पेपर पैटर्न को समझ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनली जो है उस बच्चे के यहाँ पे कुछ कुछ मार्क्स बढ़े थे, बिकॉज ये फाइनल आंसर की के पहले थे। मतलब जो प्रोविजनल आंसर की आती है ना, उसको कोचिंग की आंसर की से मैच करके उसने बताए थे। बट फाइनली उसके 186 की जगह पे 195 मार्क्स आए थे, और 1800 रैंक आई थी जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ पीसीएम पेपर शुड बी कैटेगराइज एज इजी, मीडियम एंड टफ। आपको ये सोच के एग्जाम में नहीं जाना कि भाई मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो मैं तो फिजिक्स ही करूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि फिजिक्स टफ आ गया और मैथ रिलेटिवली थोड़ा लेंथी था बट डूएबल था। ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री जो है बहुत टफ आ गया या बहुत इजी आ गया। कुछ भी आप सोच के जाओगे तो एडवांस में दिक्कत हो जाएगी। आप तो देखो तीनों सब्जेक्ट में इजी इजी कौन कौन से वो उठा लिए, टफ टफ कौन से वो छोड़ दिए। मीडियम वाले जो है वो सेकंड राउंड में कर लिए, इजी वाले फर्स्ट राउंड में कर लिए, टफ वाले थर्ड राउंड के लिए छोड़ दिए। और आप में से 90% 80% बच्चों का थर्ड राउंड आएगा ही नहीं, है ना। तो इजी और मीडियम इन्हीं से अपने को स्कोर करना है, और ये दो टाइप के सवाल भी यदि बच्चा कर देता है तो उसका 60 से 70% बन सकता है, और बच्चे का यदि आईक्यू बढ़िया है तो 80% भी बना सकता है, केवल इजी मीडियम। और कुछ दो तीन टफ सवाल भी कर दिए, मान लो किसी ने थोड़ा लॉजिक लगा के या वैल्यू रख के या किसी तरीके से, ठीक है, तो वो आराम से 70-75% तक जा सकता है। ठीक। अच्छा, एमसीक्यू में क्या होता है, देखो जो एमसीक्यू मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में जनरली ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने कम से कम 5-6 साल के पेपर देखे हैं, और उनमें ये पाया है कि सिंगल आंसर नहीं आता, मतलब केवल ए नहीं आएगा। मल्टीपल है तो ए बी, ए सी, या ए सी डी, या ए बी डी, या ए बी सी डी। पर ए बी सी डी भी बहुत कम आता है। ए बी सी डी पार्शियल मार्किंग में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचो, चारों ऑप्शन करेक्ट है, किसी ने एक लगाया उसको 1 नंबर मिल गया, किसी ने दो लगाया उसको 2 मिल गया, किसी ने 3 लगाया उसको 3 मिल गया, किसी ने चारों लगाया उसको चारों मिल गए। तो क्वेश्चन प्योर वेस्ट हो गया ना, उसमें तो कोई पेनल्टी रही नहीं, वो तो आसान क्वेश्चन हो गया। बट इसका ये मतलब भी नहीं कि एबीसीडी कभी नहीं आता। हर 20 सवाल में से एक सवाल में एबीसीडी दिखेगा आपको, और हर 20 सवाल में से एक सवाल आपको सिंगल ऑप्शन भी दिखेगा। तो वो थोड़े डेंजरस होते हैं, जहाँ पे आंसर केवल ए है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दो तो आने ही चाहिए, और आपने एक एक ऑप्शन पे रिस्क ले ली कि सी और डी तो गलत है पक्का, ए मेरा पक्का सही आ गया, और बी मुझे लग रहा है कि शायद से ये लग तो रहा है, शायद से जा सकता है, मतलब आंसर मेरा सॉल्व करके तो नहीं आ रहा, पर मुझे लग रहा है कि शायद से बी भी होगा, और मैंने बी लगा दिया। तो वैसे केस में फिर सीधा -2 होता है, लेकिन ये रिस्क बहुत कम होती है ना। तो यदि इन केस आपको लग रहा है कि नहीं 70-80 एक ऑप्शन तो सही है, दो ऑप्शन पक्का गलत है, और
एक ऑप्शन में 80% लग रहा है कि नहीं ये सही है, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिया है, तो वैसे केस में मैं तो रिस्क ले लेता हूँ भैया ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रिस्क लो, बट जब मैं टाइम बाउंड में पेपर देता हूँ तो मैं इस तरह की रिस्क लेता हूँ, एंड 90% केस में वो सही होता है कि नहीं, दो आंसर जो लगाए थे वो दोनों ही सही। ठीक है, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप डिसीजन लें। ठीक है। अब मैं 3 साल के पेपर यहाँ सोल्व करूंगा, पूरे सोल्व नहीं करूंगा, मैं तो जस्ट बताऊंगा कौन सा मैं क्वेश्चन करूंगा एज ए स्टूडेंट, कौन सा छोड़ दूंगा। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेनली बात कर रहा हूँ 99 पीआर के आसपास जिसकी आई है, मतलब जिन बच्चों का 180 190 स्कोर आया है +-10, उन बच्चों के हिसाब से कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। आप में से कुछ बच्चे जो है वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे भी हैं, तो वो उनको ये लगेगा कि सर ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया, तो सिंपल है, 2 लाइन में हो जाएगा। तो वो सब ठीक है, आप आपके हिसाब से देखना। मैं तो एक एवरेज 99 के आसपास का जो बच्चा है उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो चीज बताऊंगा, और लगातार 3 साल के पेपर में बताऊंगा, 21 22 23। तो ऐसा भी नहीं कि एक साल में लग गया सर जो आप बोल रहे थे, बाकी 2 साल में तो लगा ही नहीं, तीनों साल में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से अपने को क्वेश्चन का सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, ये 2021 का पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन, मतलब तीनों साइड, दो साइड एक्स एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस पे एक लाइन पे है, और ऑर्थो सेंटर दे रखा है। तो ठीक है, जिसकी कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग है वो इसको टैकल कर सकता है, मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जो क्रॉस कर रहा हूँ हो सकता है किसी को इजी लगे, है ना, तो वो चीज को आप इग्नोर करें। मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रीजन y बराबर 0 से 1 सबको पता है, x, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा कुछ बनेगा, ये एक लाइन है, लाइन की एक तरफ का रीजन, ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का दूसरी तरफ का रीजन, तो ये मस्ट डू क्वेश्चन है। ठीक है, और एक 99 पीआर का बच्चा इसको 100% स्कोर करेगा, +3 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने देखा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कंसिडर सेट E1 E2 F1 F2 पता नहीं क्या क्या दे रखा है, देखते हैं, अ बिग नो। ठीक है, आगे बढ़े। θ1 θ2 10 10 थीटा दे रखे हैं, Z1 - Z2, देखते हैं, अ बिग नो। और तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है ना, बट ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, फिर है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसको प्रोबेबिलिटी ठीक लगती है वो इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। मुझे इन पर्सन प्रोबेबिलिटी उतनी पसंद नहीं है, तो मैंने देखते ही छोड़ दिया। ठीक है, अगला, लेट अल्फा बीटा गामा आर द रियल नंबर ऑफ आंसर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब इसमें देखो, इस तरह के हमने कम से कम 100 सवाल जेईई मेन में लगा रखे हैं, भर भर के पीवाईक्यू है ना, पक गए, मतलब ये सवाल लगा लगा के। तो सीधी सी बात है कि इसमें ये तीनों के कोएफिशिएंट दे रखे हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसका D0 आ रहा होगा। ठीक है, D0 नहीं आ रहा तो अल्फा बीटा गामा पे कोई केस ही नहीं बनेगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। तो D0 आ रहा होगा, इसका मतलब आपको बस D1 0 करना है, और या फिर जो भी दूसरे तरीके आपको आते हैं। तो आपने बेसिकली अल्फा बीटा गामा में D1 को बराबर 0 करते हैं, एक अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, रिलेशन आने के बाद ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स, ये जो एम एक मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेंट बताओ, यहाँ पे पूछा है। तो इसको आप जैसे एक्सपेंड करोगे तो जो D1 0 करके अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन आएगा ना, वो रिलेशन भी इसी में आने वाला है, इसी में आने वाला है। तो वो जहां वहां से सोल्व किया उसको यहाँ उठा के रख दिया, बस आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन मस्ट डू हो गया, +2 मार्क्स। और ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, दोनों हो जाएंगे एक साथ। तो टोटल 7 नंबर मेरे हो चुके हैं अभी तक, और आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द लाइन L1 L2। ठीक है, दो लाइन दे रखी है। फॉर अ फिक्स्ड लैम्डा लोकस ऑफ P सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ P फ्रॉम L1 एंड L2 इज लैम्डा स्क्वायर। मतलब दोनों लाइन से डिस्टेंस का प्रोडक्ट h कोमा कैसे लैम्डा स्क्वायर कर देना है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, नहीं जा रहा हूँ, क्रॉस कर दिया मैं, क्योंकि आगे भी इसमें कुछ कुछ चीजें दे रखी है, तो ये क्वेश्चन आगे जाके फंस सकता है। फंसने का मतलब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि आप 10 मिनट दे दिए फिर भी आंसर नहीं आया, तो मैंने इसको फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया। आगे आया मैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। फिर 3 × 3 मैट्रिक्स है, फिर ऑप्शन पढ़ा, तो क्यू इनवर्स एफ इनवर्स क्यू वो, अब बिग नो। ठीक है, काट दिया सवाल को, देखते हैं आगे बढ़े। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे एक रिलीफ मिला, क्योंकि अब इसमें कुछ ही पूछ लो 99 का बच्चा आराम से कर देगा। एफ इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, ऑन टू इनटू, इस सारा का सारा हो गया +4 नंबर। ठीक है, 99 के बच्चे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ।
સ્ટુડન્ટ્સ ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં થોડો ઇશ્યુ આવ્યો છે, લાઇટ વહી ગઈ છે. જસ્ટ સ્ટે હિયર ફોર અ મોમેન્ટ, જસ્ટ સ્ટે હિયર ફોર 5 minutes. We'll get back to you in 5. यस, तो अभी लाइट चली गई थी तो थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 जो है वो अपन लोगों ने कर लिया, बिकॉज डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो कोई भी कर देगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की अपन बात करें तो 13 में देखो कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लेकिन कुछ बहुत सारी नहीं भी दे रखी है, और फिर साथ में कुछ ये सारी चीजें पूछी है। तो मैं इसको फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा, फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा, ऑल्दो हो सकता है शायद हो जाए, बट एक बार इसमें लूंगा बिकॉज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेस देन ग्रेटर देन है ना, इसका मतलब कुछ अजम्पशन या कुछ कम ज्यादा करना पड़ेगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर हम्म फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक मैट्रिक्स दे रखी है, आई बी दी थ्री को ई एफ एफ जो है दो मैट्रिक्स है, दिस इज इन्वर्टिबल और बी बराबर ये दे रखा है, तो ये पढ़ने पे थोड़ा डेंजरस लग रहा है, छोड़ दिया। ठीक है, 15, फॉर एनी इंटीजर दिस, ये देख के कॉट इनवर्स का सिग्मा मतलब डिफरेंस में टूटेगा, टेन इनवर्स हो गया कॉट इनवर्स, सिग्मा मतलब डिफरेंस में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स है और यहाँ ऊपर लिखा है के एक्स और के प्लस वन एक्स, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर नीचे लिखा हुआ है। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स वन बाई समथिंग लिख के आप इसको डिफरेंस में तोड़ सकते हो, बट अगेन फर्स्ट राउंड में मैं इसको नहीं लूंगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में लूंगा, फर्स्ट में तो नहीं लूंगा, क्योंकि आगे भी ऑप्शन थोड़े भयानक भयानक नजर आ रहे हैं, तो एक बार के लिए मैंने इसको स्किप किया फर्स्ट राउंड। ठीक है, आगे बढ़े। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आर्ग्यूमेंट ये होता है, आयोटा ये होता है,
अल्फा बीटा रियल नंबर है, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये कुछ ऐसा हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस रियल प्लस और अपॉन जेड प्लस रियल। तो हमको भी पता है कि भाई ये तो एक सर्कुलर आर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत बेसिक लेवल की चीज है। तो सर्कुलर आर्क को रिप्रेजेंट करता है और ये बोल रहा है कि वो सर्कुलर आर्क ये है। तो ये क्वेश्चन डुएबल है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आपने जेईई मेन में पहले भी किए हैं। मतलब ये 2021 वाले बच्चों ने 2020 में या 2019 में कर रखा हूँ। आपको तो चलो ठीक है, 22-23 में सवाल आया तो हम बोल सकते हैं जेड माइनस का रिपीटेशन, लेकिन 2021 वाले में ये इस तरह क्वेश्चन देखे हुए हैं, Z-2 अपॉन Z+4 बराबर π/4। तो बताओ ये सर्कुलर आर्क की इक्वेशन क्या है? तो ये सबने देखा हुआ है। इसने इस बार क्या किया, इक्वेशन ना पूछ के यहाँ अननोन छोड़ दिया अल्फा बीटा। अगेन इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ सेकंड राउंड में, ठीक है, सेकंड राउंड पे ले रहा हूँ, फर्स्ट पे नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको फर्स्ट पे ले लेंगे। हाँ नहीं दिखा रहा। हो रहा है। यस। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में देखो क्या है, नंबर ऑफ रियल रूट। मोड का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रियल रूट। 11th का बच्चा जिसने केवल अभी 2 महीने पढ़ाई करी है वो भी इसको कर देगा आराम से, ठीक है। तो दिस इज अ श्योर अटेम्प्ट, श्योर अटेम्प्ट है, आराम से +4 नंबर आगे तुम्हारे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इन्हें ट्राइंगल तीनों साइड दे रखी है और ये पूछा है। वैसे तो एसओटी का सवाल है, बट बेसिक फॉर्मूले तो बता दिए जाते हैं सबको। इसको आप साइन कॉस में चेंज करोगे ना, तो ये कॉस ए कॉस बी और कॉस सी इसमें टूट जाएगा। इसमें टूट गया तो कोसाइन फॉर्मूले से तीनों वैल्यू निकाली जा सकती है। ये तो बिना सोल्व किए मैं बता रहा हूँ कि शायद से टूट जाएगा और साइन वाइन वाले जो है वो मर्ज होकर कट जाएंगे, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन यदि आपने एसओटी बहुत डिटेल में पढ़ा होता तो ये श्योर अटेम्प्ट था, ठीक है। अभी के हिसाब से मैं इसको सेकंड में रख देता हूँ। मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया और आपने एसओटी नहीं पढ़ रखी, केवल साइन कोसाइन फॉर्मूला पता है, तो इसको सेकंड अटेम्प्ट में ले लेंगे अपन। इसका जो अगला क्वेश्चन है 19, ये है, इसमें कुछ वेक्टर दे रखे हैं, कुछ डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं और साथ में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप दे रखा है। पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम का स्क्वायर है, बॉक्स का स्क्वायर, वो सबको पता है कि वो डॉट 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 डॉट। तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, +4 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बट चलो मान लो किसी को वेक्टर थ्योरी नहीं आती है तो उसको एक बार के लिए क्रॉस मान ले, किसी का वीक है तो क्रॉस मान ले, किसी का ठीक ठाक है तो उससे बन जाएगा इजीली। अब आप देखिए टोटल मार्क्स कितने हो गए, ये पेपर खत्म हो गया अपना, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हुए इसको मैं नहीं गिन रहा हूँ 19 को, तो 4 नंबर आ गए 17 में, ठीक है। 4 नंबर आ गया 12 में, 8। फिर उसके बाद 4 नंबर आ गए इसमें स्टेम वाले में, 12 हो गया। एंड देन लास्ट में ये 3 नंबर यहाँ आ गए +3। 15 नंबर केवल फर्स्ट राउंड में आ गया। एक 99 पीआर का बच्चा जो है, 15 नंबर ये केवल आधे से पौने घंटे में कलेक्ट कर देगा मैथ, आधे से पौने घंटे, ठीक है। अभी वो केमिस्ट्री पे जाएगा, केमिस्ट्री पे हो सकता है कि मतलब उतना ज्यादा टाइम लगता नहीं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, वैसा सीन रहता है। तो वहां से भी बच्चा 15 मिनट बचा लेता है। तो सवा घंटा लगभग मैथ के लिए इन जनरल बच्चा रखता है, मतलब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है बट बच्चा रखता है। तो आपके पास अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है। उस आधे घंटे में जो भी आपने 3-4 क्वेश्चन जो है सेकंड राउंड के लिए रखे थे उनको करो। उसमें से यदि मान लो 2 क्वेश्चन और सही हो गए तो आपको 5-6 नंबर और मिल गए। 5-6 नंबर और मिल गया, मतलब टोटल मार्क्स हो गया आपका 20-22 के आसपास। 20-22 पेपर 1 में आ गया, 20-22 पेपर 2 में आ गया। मैथ में 40 नंबर का मतलब हो गया आपकी रैंक लगभग, यदि केवल मैथ के हिसाब से रैंक आती होती तो मैथ के हिसाब से आपकी रैंक लगभग आ जाएगी मेरे हिसाब से 3,000 के आसपास, 3-4 हजार, केवल मैथ के हिसाब से, ठीक है। अब ये हो गया 2021। एक बार अपन क्विकली जो है 2022 और 23 भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगे कि नहीं चीजें डूएबल तो होती है, बस आपको बिलीफ होना चाहिए और एक धैर्य होना चाहिए।
जल्दीबाजी रहेगी तो नहीं होगा। 2022 का पेपर जो कि सबसे टफ बताते हैं, जिसमें जिस जिस बच्चे की रैंक 1000 आई है उसके 30 नंबर है ऑन एन एवरेज। इतना टफ बताते हैं, मुझे उतना टफ लगा नहीं, बट फिर भी चलो अपन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनवर्स 1/4 अजीब अजीब पाई दे रखा है, देखते हैं, छोड़ दो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट की बात हो रही है। जी अल्फा प्लस, मतलब यहाँ पे लिमिट अल्फा रखना पड़ेगा। अल्फा रखना पड़ेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जीरो बन रहा है, और लॉग में जब भी जीरो बने या इंफिनिटी बने आपको लगाना तो एल हॉस्पिटल ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगने वाला है ऊपर नीचे। एल हॉस्पिटल जैसे लगाओगे सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व होते हैं आपके पास क्या आ गया, जी अल्फा प्लस की वैल्यू आ गई, लिमिटिंग वैल्यू। और वो लिमिटिंग वैल्यू एफ के अंदर रख दो, एफ के अंदर मतलब यहाँ रख दो, यहाँ रख के आपका आंसर आ गया। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा बिल्कुल पर्पस नहीं है, वो सब आपको आता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता लग रहा है कि नहीं लग रहा कि आपसे हो जाएगा। सॉल्व करने के पहले ही पता लग जाएगा हो जाएगा, उसी क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से फर्स्ट फर्स्ट राउंड का है, और 3 नंबर इसमें पक्का आने चाहिए 98 99 वाले बच्चे के हिसाब से। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है, 900% का डेटा है, जिसमें से 190 को फीवर है, 220 को कफ है, 220 को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, 330 को मतलब फीवर और कफ और बोथ, मतलब फीवर इंटरसेक्शन कफ यूनियन कफ। ठीक है, ये है, ये आपको नंबर दे रखा है यहाँ पे 330। तो यूनियन दे रखा है, एफ दे रखा है, सी दे रखा है, तो वहां से हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब सॉल्व करके एफ इंटरसेक्शन सी आ गया बेसिकली। ऐसे ही आपको 350 में यूनियन दे रखा है, 340 में यूनियन दे रखा है, इन यूनियन से आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट में उसने तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है, फीवर कफ एंड ब्रीथिंग। तो ये प्योर क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी लेवल, बिल्कुल बोर्ड लेवल का सवाल है। वेन डायग्राम बनाओ, वो जो 7 8 रीजन होते हैं उनको भर दो एक एक करके। भरने के बाद पूछ रहा है, इफ ए पर्सन इज चूजन रैंडम आउट ऑफ दीज 900, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम। ठीक है, तो आप वेन डायग्राम में देख लो एट मोस्ट वन सिम्टम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया। अगेन ये +3 मार्क्स है। मैं जिस जिस बच्चे का ये सेट वीक है वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है, और ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है। ये क्वेश्चन जो है वो पुराना पीवाईक्यू है, और ऑलमोस्ट हर कोचिंग और हर जगह पे करवाया जाता है। ठीक है, नोट्स में होता है, नहीं भी यदि नोट्स है तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान से हो जाएगा। जेड उसने क्या बोला है, नॉन जीरो इमेजिनरी नंबर, तो जेड बराबर ए आयोटा मान लो। ठीक है, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है ना, ए आयोटा मान लो। रियल पार्ट के बारे में तो कुछ बोला नहीं उसने, तो रियल को जीरो मान लिया। जेड उठा के यहाँ पे रख दो, और इसको जैसे ही रेशनलाइज करके आप उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो करोगे, ए आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, यदि किसी को मान लो प्रॉपर मेथड नहीं आता या क्वेश्चन पहले देखा नहीं, वो भी आदमी जुगाड़ से निकाल लेगा। बट चलो मैं मान लेता हूँ यदि आपने इस तरह का क्वेश्चन कर रखा है तो ये आपसे बनेगा, नहीं कर रखा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक बार के लिए मार्क्स नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, बट यदि आपने एक कर रखा तो +3 मार्क्स आपके हो गए। अगला क्वेश्चन है, जेड जेड बार ऐसा कुछ कुछ दे रखा है, तो ये क्वेश्चन जिसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लगता है वो तो करे, मैं एक बार के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। सिक्स क्वेश्चन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस D1 है, डब्ल्यू एंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म से पढ़ने में आलस आ रहा है तो छोड़ दिया, पूरा भी सवाल भी नहीं पढ़ा, पहले ही छोड़ दिया। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इन क्लोज इंटरवल, और इनसे बनाया गया है, और तो इस तरह के क्वेश्चन तो प्रोसीजरल होते हैं, लेकिन क्योंकि पीएनसी का क्वेश्चन है एंड दूसरा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन में कुछ लिखा नहीं, ऑप्शन में कुछ लिखा नहीं तो मेरे को रिस्क है। हो सकता है मेरा आंसर 550 आया जबकि 551 था, तो मेरे को रिस्क है, तो मैं इसको सेकंड राउंड पे ले गया, और या फिर मैंने क्रॉस कर दिया एज पर योर कैपेबिलिटी इन पीएनसी। ठीक है, फिर एबीसी से ट्राइंगल ए बी दे रखा है, बीएससी दे रखा है, रेडियस टच टच टच, कुछ अजीब सा लग रहा है देख के, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, किसी का कोऑर्डिनेट या एसओटी अच्छा है तो वो इसको कर सकता है, बट मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन जिसको टफ लगता है वो छोड़ दो, जिसको इंटीग्रेशन डिसेंट लगता है कि नहीं मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं, वो ध्यान से देखेगा ना, तो देखो एक्स, इसको 3/2 को टी मानते ही अंडर रूट आएगा, और 1/x को log x आएगा, ठीक। तो log x की पावर 3/2 को जैसे ही टी माना, ये क्वेश्चन हो गया। मतलब ये क्वेश्चन यदि बोर्ड का ठीक ठाक बच्चा, इसकी 90% 12 में बनती है, उस बच्चे को दिया जाए बोर्ड के एग्जाम में, तो हो सकता है उसको कर देगा ये, आराम से कर देगा। तो इस क्वेश्चन को मैं इजी मान रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस उसके लिए जिसको इंटीग्रेशन से डर लगता है, बाकी 99 वाला बच्चा इसको आराम से कर देगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ऐसे कुछ कॉमन डिफरेंस दे रखा है, मतलब ए दे दिया और डी दे दिया, मतलब उसका एन पता है। ठीक है, लेट T1 भी दे दिया और TN-1 ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा, एन तो निकल ही जाएगा,
एन तो निकल ही जाएगा, कॉमन डिफरेंस 8 है तो ये आ जाएगा 8n-1, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म के हिसाब से तो मतलब कुछ ना कुछ लीनियर आ गया बेसिकली। और फिर उसके बाद डिफरेंस एपी में तो टीएन क्वाड्रेटिक आता है। तो आप चाहो तो टी वन दे रखा तो टी टू निकालो, टी थ्री निकालो, टी फोर निकालो, आपको पता लग जाएगा कि वो डिफरेंस एपी वाला सिचुएशन बन रही है। तो ये आपको कंफर्टेबल लगता है तो कर लो, मैं इसको मना कर रहा हूँ। ठीक है, या तो मना कर रहा हूँ या तो सेकंड राउंड। अब आगे बढ़ते हैं। दो प्लेन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन कैन बी एज ऑफ द सेम टेट्राहेड्रन। अब ये सवाल पहली बार सुना, अभी तक तो बहुत आसान क्वेश्चन आते थे 2022 के पहले। ये क्वेश्चन में दो प्लेन दे रखा है और एक तीसरा प्लेन जो है उसका टेट्राहेड्रन का फेस बने या ऐसा कुछ तो सवाल है। तो ये क्वेश्चन मेरे को देखते ही मुझे तो अनकंफर्टेबल लगा तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अगला, लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। एस जो है वो क्यू का रिफ्लेक्शन है प्लेन में। तो ये तो बात सुनते ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि रिफ्लेक्शन इमेज निकालना तो मेरे को आता है। अब प्लेन की शक्ल थोड़ी सी नहीं है बस, तो कोई दिक्कत नहीं, उस शक्ल को अपन अलग करें तो उसमें टी के साथ कुछ आ जाएगा, उसमें टी के साथ कुछ आ जाएगा और कुछ और बच जाएगा। ये होगी आर बराबर ए प्लस लैम्डा पी प्लस म्यू क्यू। ये होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। इस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन को अपन पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट निकाल के। तो क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन मेरे को कंफर्टेबल लगी, कॉन्फिडेंस वाली, कि भाई पी की इमेज क्यू में निकल, प्लेन में क्यू है और प्लेन भी दे रखा है, तो अब मैं कैसे भी करके उस प्लेन को ले आऊंगा। केवल एक केस में नहीं आ सकता हूँ, मान लो ये पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता ही नहीं, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी प्लस म्यू क्यू, ये जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए क्वेश्चन टफ हो गया। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, पॉइंट पी आपको दे रखा है और इमेज को अल्फा बीटा गामा माना है, तो अल्फा बीटा गामा इमेज निकल जाएगी, प्लेन हमने निकाल लिया। और जब इमेज आ गई तो चारों ऑप्शन चेक हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो डूएबल है और मैं इसमें +4 मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबोला का कुछ क्वेश्चन है और कुछ कुछ तो डिस्टेंस वाली बात है, तो ये कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग है तो करूंगा, कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं एक बार के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं चलो फिलहाल के लिए इसको सेकंड राउंड में मैंने जाने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही बड़ा भयानक लग रहा है, ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है, तो बिग नो। ठीक है, फिर आगे बढ़े। 15 क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1, ये तो कोई बच्चा ही सोल्व कर देगा 11वीं क्लास में। टेन थ्री बराबर 1/√2, तो कोई भी बच्चा सोल्व कर देगा, ये कोई भी बच्चा सोल्व कर देगा, मतलब +3 नंबर आ गया। और उसमें भी ये इस तरह की मैचिंग है, देखो 1 पी से है, 1 पी से है, 1 क्यू से है, 1 क्यू से है। तो आपने जैसे मान लो 1 को सोल्व किया तो 1 का तो दिख ही रहा है, या तो cos x बने या तो sin x बने। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो तो वर्बली हो गया। तो आपको ये पता लग गया कि 1 पी से कनेक्टेड है कि नहीं, यदि पी से कनेक्टेड है तो सी और डी गलत हो गए। तो अब दो ऑप्शन में लड़ाई है, दो ऑप्शन में लड़ाई, तो अब देख लो सेकंड में एस और पी अलग अलग है, इसका मतलब सेकंड यदि मेरे से हो गया तो मेरा आंसर आ गया। अब मेरे को थर्ड और फोर्थ को देखने की जरूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जो है बड़े आसान होते हैं यदि आपने पहले ले लिया इसको, जब आपके पास समय है। तो एक तो समय भी कम लेगा, दूसरा आपको पता लग जाएगा ये तो 100% मेरा सही है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। तो 3 नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। किसी को टफ लगता है, जैसे मुझे टफ लगता है मैंने छोड़ दिया, आपको इजी लगता है पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट, फिर कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है लेकिन साथ में हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी दिख रहा है, मतलब मिक्सिंग है। मिक्सिंग है तो मैंने इसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ दिया। मिक्सिंग कर रखी है चीजें, उतनी आसान शायद है कि नहीं, आई डोंट नो, करके देखना पड़ेगा, तो अभी मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलिप्स दे रखा है, स्टैंडर्ड इलिप्स, और उस पे एक पॉइंट है अल्फा, 0। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्लोज द इलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल। ये जिसका कोऑर्डिनेट बढ़िया है उसके लिए क्वेश्चन आसान है, जिसको कोऑर्डिनेट से थोड़ा डर लगता है वो छोड़ दो। ठीक है, मतलब एक अच्छा बच्चा कर देगा, लेकिन मैंने फिर भी चलो मान लिया कि एक बार इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बार मार्क्स काउंट करते हैं। अब 3 मार्क्स यहाँ है 15वें क्वेश्चन में, फिर 4 मार्क्स यहाँ पे आया 5, फिर उसके बाद 3 मार्क्स 9वें पे आया 10, फिर उसके बाद ये इसको मैंने मना कर रखा है, वो तो टफ है नहीं, बट चलो ठीक है। 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 नंबर में इस पेपर में लिया है, जहाँ पे 30 नंबर पे 1000 रैंक आती है मैथ में, 35 नंबर। 16 नंबर तो पेपर 1 में लिया है, और उसमें दिल खोल के अपन ने क्वेश्चन को स्किप किया है ना। 16 नंबर यहाँ आगे, ऐसे ही मान लो 16 15 16 नंबर वहां आगे, 30 नंबर 2022 के पेपर में
एक 99 परसेंटाइल वाले बच्चे के लिए बहुत बढ़िया स्कोर है, जबकि ये स्कोर अपन ने केवल राउंड 1 में किया है, राउंड 2 तो आया नहीं अभी। ठीक है, ये तो राउंड 1 की बात हो रही है। अब आते हैं 2023 का पेपर, लास्ट 5 मिनट और अपने को लगेगी। ठीक है, 2023 क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे एक यूनियन ऑफ इंटरवल दे रखा है, कुछ 0 से 1 और ऐसा, और कोई ऐसा कुछ दे रखा है, इनफाइनाइट फंक्शन, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल। देखते हैं, अजीब लग रहा है, छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। एक इलिप्स है और एक पैराबोला है और उसकी दो कॉमन टेंजेंट है। इसका मतलब कॉमन टेंजेंट दोनों का सी बराबर करके निकाल लूंगा। फिर उसके बाद टेंजेंट जो है वो A1 A2 पे टच कर रही है, और T2 जो है वो A3 A4 पे टच कर रही है। तो पहली बात तो दोनों टेंजेंट आ गई, दोनों टेंजेंट आ गई तो दोनों चारों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। इसका मतलब हाईली प्रोसीजरल क्वेश्चन है और आसान सवाल है, +4 मिल गया मेरा। 5 मिनट लगेगा, लेकिन ये 4 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन शक्ल देखते ही बड़ा भयानक लग रहा है, कुछ क्यूबिक है और फिर कुछ क्रॉस कर रखा है और फिर वाई ज्यादा है कम है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। देखते ही 15 सेकंड पड़ा, छोड़ दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ तो इंटी कुछ लिमिट है, कुछ इंटीग्रेशन है, कुछ बाद में लिमिट है, कुछ थ्योरेटिकल जैसा कुछ कुछ लग रहा है, तो एक बार के लिए छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेक्टर 3D स्ट्रॉन्ग है तो पढ़ लो, है ना। बट मुझे देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये जे एडवांस की खास बात ये होती है, क्वेश्चन भले टफ नहीं है लेकिन वो फ्रेम ऐसे करते हैं कि आदमी डरेगा। तो मैं इससे डर गया और मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। इलिप्स के अंदर के पॉइंट है, पैराबोला के अंदर के पॉइंट है, 3 पॉइंट्स रैंडमली चूजन, और प्रोबेबिलिटी दैट वो जो एरिया बनेगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो एरिया एक रीजन तो आएगा अंदर, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा है, देख के छोड़ दीजिए। मतलब मुझे टफ लग रहा है, हो सकता है आपको आसान लगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 7। पॉइंट P इज ऑन द पैराबोला, ए पॉजिटिव, नॉर्मल टू P, मीट द एक्स एक्सिलेंट Q। तो नॉर्मल y प्लस px बराबर 2at प्लस 80 क्यूब, और वो Q पे मिलता है x पे, तो वहां पे y 0 कर दो, x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। एरिया ऑफ पी एफ क्यू, जहाँ पे एफ फोकस है, तो फोकस पॉइंट पी टी के टर्म्स में पता है, पॉइंट क्यू भी टी के टर्म्स में पता है, तो उसको सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे टी आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली। और टी आ गया तो फिर आगे काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डुएबल है, +4 नंबर आपको देके जाएगा। कोऑर्डिनेट वीक है वो अलग बात है, उसके साथ में इसको स्किप करता हूँ। नेक्स्ट, tan इनवर्स इसमें होता है वो तो पता ही है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हो गया √2 मॉड ऑफ cos x बराबर, तो √2 से √2 कट गया। अब ये बताया मोड ऑफ cos x बराबर tan इनवर्स ऑफ tan x। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, मतलब दोनों के ग्राफ बनाऊंगा, दोनों के ग्राफ बना के कट काउंट कर लूंगा कितने कट हो रहे हैं, आराम से +4 नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। देखते ही थोड़ा डेंजरस लग रहा है तो मैंने छोड़ दिया एक बार के लिए। 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन तो सही बताऊं तो सॉल्यूशन देख के भी टाइम लगा था समझने में, देख के छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल करना चाह रहा है। रियल होगा तभी तो इंटीजर आएगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया ना उसने, तो मैं इसको भी स्किप कर। यदि ऐसा बोलता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा निकालो तो ये प्योरली रियल है, तब वो क्वेश्चन देखा हुआ है अपना, अपन आराम से रेस्ट्रिक्ट करते और फिर इमेजनरी को 0 कर देते। लेकिन इसमें पॉजिटिव इंटीजर बोला तो एक बार के लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अजीब सा दे रखा है, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दिया। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो रियल नंबर, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन, ये तो कोई भी बच्चा कर देगा, एनसीईआरटी लेवल का सवाल है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5 इन द एक्सपेंशन, ये भी कोई बच्चा कर देगा, और दोनों बराबर है। इनफैक्ट ये जेई मेन का पीवाई क्यू है, बट नहीं भी पीवाई क्यू होता तो एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे +4 नंबर आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब +3 मार्किंग है। अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, तो मैं तो इसको करूंगा, करूंगा तो सही में, जो भी आ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो भी आ रहा है। और ऊपर से ये इस तरह की मैचिंग है, इस तरह की मैचिंग में तो क्या है, आपको आधा सवाल भी आता है ना तो नंबर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसको मैं कर लूंगा, तो मैं इसमें एक ऑन एन एवरेज, ठीक है, 2 नंबर या ठीक है 3 नंबर मान लेते हैं, 99 वाला तो कर ही देगा उसको मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, एक्स आई एफ आई का डेटा दे रखा है, मीन, तो मीन तो कोई 10वीं क्लास का बच्चा निकाल देगा, मीडियन निकाल देगा,
ये सारी चीजें जो 10th क्लास की है, 10th क्लास की, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो बनना ही है। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो वेक्टर 3D का है, और उसमें भी मैथ दी कॉलम है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंथी होगा तो मैं कुछ सेकंड राउंड में रखा, फर्स्ट में नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर है मोड जेड क्यूब, और ऐसे कुछ कुछ दे रखा है, और इसमें इमेजिनरी, लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो। ठीक है, मतलब जेड को एक्स प्लस आल्फा वाई रखूंगा और वैसे कुछ सोचूंगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, मैं इसको फर्स्ट राउंड में तो नहीं कर रहा। ठीक है, पेपर खत्म, अब मार्क जोड़ लेते। 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 6, 6 4 10, 10 और 4 14 हो गए, और 4 18, 18 और 4 22 नंबर लिया है अभी आपके सामने, है ना, मतलब सोल्व नहीं किया, बट ये 22 नंबर ऐसे है ना जिन पे भी आपने अटैक कर दिया होता, तो हो सकता है कि एक आधा कहीं पर लक खराब हुआ, आंसर नहीं आया, मान लो आंसर गलत हो गया, तो भी 16-17 नंबर कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। और ये फर्स्ट राउंड है। सेकंड राउंड में यदि मान लो आपने जो जो क्वेश्चन में हमने सेकंड राउंड के लिए छोड़े, या मान लो जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, यदि ऐसे 2-3 क्वेश्चन और क्रैक कर दिए, तो ये वापस से 22 23 24 25 हो गए। भाई 22 को तो आपने श्योर अटेम्प्ट किया, उसमें से लेट से आपके 5-6 नंबर कट गए, लेकिन सेकंड राउंड में भी तो करोगे ना 2-3 सवाल, उसमें 5 से वापस से आ गए, तो आपका नंबर आ गया 22, 22 और 22 कमान। ठीक है, तो तीनों साल के पेपर में लगभग 30 से 50 मार्क्स तक स्कोर किया जा सकता है, केवल आपको इस तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए, ये हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आपको देखो मार्कशीट भी हम लोगों ने बताई है, जिन लोगों ने इजी स्कोरिंग जो वो होते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उनको पहले किया है, उनके मार्क्स काफी ज्यादा है। ठीक है, समय वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यही था कि आप मतलब आपका पूरा 2 साल कैसा भी निकला हो, यदि आपने इन दी एंड 97 98 या 99 मैनेज कर लिए, तो केवल एक दिन की बात है, और वो एक दिन किसी का भी 6 पढ़ सकता है और कोई भी बोल्ड हो सकता है। तो जो 98.5 है वो ये नहीं सोचे कि अपन छोड़ने वाले हैं, और जो 97 वाला है वो ये नहीं सोचे कि अपन छूटने वाले हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है ना। 98.5 वाला सोचे कि मेरे को केयरफुली बच के निकलना है, 97 वाला सोचे कि भाई होने के लिए कुछ है ही नहीं, होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं होने के चांस तो है ही अपने, 50-60% चांस है कि भी अपना 5,000 रैंक नहीं आएगा यदि 97 पे आ गया तो। लेकिन यदि आप ताबड़तोड़ खेलोगे इस तरीके से कलेक्शन के साथ, तो हर्ष परानी जैसा केस आप भी बन सकते हैं, एटलीस्ट 98 वाला बच्चा तो आराम से बन ही सकता है। ठीक है, ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही था, और तो विपिन सर, विपिन सर। थैंक यू कमलेश सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है मेरा सबको? कमलेश सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोगों को ड्यूरिंग द एग्जाम सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे तो भरोसा करना ही है डेफिनेटली, लेकिन साथ ही साथ अपने को पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है उस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो भी इजी टाइप के सम्स हैं और स्कोरिंग सम्स हैं, एक्चुअली मतलब इजी टाइप भी है प्लस स्कोरिंग भी जिनमें इजी है, लाइक सर ने बताया सिंगल चॉइस हो गया, फिर इंटीजर वैल्यू हो गया, 0 to 9 और 00 to 99 टाइप क्वेश्चंस, तो उनपे अपने को फर्स्ट राउंड में फोकस करना है। मल्टीपल चॉइस में अगर एक ही ऑप्शन पर हम लोग कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली वही टिक करें, क्योंकि -2 से ज्यादा अच्छा है कि हम +1 लेकर आए। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप पर भरोसा करें, फेथ रखें अपने स्कूल पर। जो लास्ट 2 इयर्स में टीचर्स ने और स्कूल ने तुम लोगों पे वर्क किया है, साथ ही साथ तुम लोगों ने साथ में जो वर्क किया है उस पे भरोसा रखें। मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम हो सकता है कि बहुत और सिचुएशन भी आ जाए, लाइक हम लोगों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि केमिस्ट्री में 40 के अराउंड स्कोर करेंगे और पेपर टफ आ गया, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, सेकंड भी नहीं बन रहा है, थर्ड भी नहीं बन रहा है,
तो उस टाइम पर भी हमको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। जैसा अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि उस सिचुएशन में भी अगर हम कुछ इजी सम्स ढूंढकर बहुत इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, है ना, तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं सर मैं कर सकता हूं। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ऐसा भी हुआ है कि एक एक दो दो क्वेश्चन जो है वो बोनस हो जाता है। पता चले कि हमने उस क्वेश्चन पे अराउंड 10 मिनट्स वेस्ट किए थे और वो बोनस हो गया, तो वो अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो चाहे अपना फेवरेट सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है या फिर हम लोग फंस गए हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हमको विदाउट वेस्टिंग द टाइम दूसरे क्वेश्चन पे या किसी और सब्जेक्ट में स्विच कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम हम इजी क्वेश्चंस पे और स्कोरिंग क्वेश्चंस पे देंगे, मानकर चलो बच्चों हमारा स्कोर जो है वो उतना ही अच्छा आने वाला है, जितना ज्यादा टाइम हम वहां पर यूज करेंगे। और मेरे को हित सर, विमल सर, मोदी सर, सबको आप लोगों पे भरोसा है, क्योंकि 2 साल हम लोगों ने आपको देखा है, आपके वर्क को भी देखा है, आपके एग्जाम्स का एनालिसिस भी किया है। तो हमें तो मालूम है कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन ये भरोसा आपको भी होना चाहिए और बिना डरे हमें पेपर करना है। बेस्ट ऑफ लक। कंट्रोल करें अपने इमोशंस पे ड्यूरिंग द एग्जाम, डरे नहीं, खुद पे भरोसा रखें, स्कूल पे भरोसा रखें। पूरी टीम, मानकर चलो कि जब आप लोग एग्जामिनेशन में होंगे तब पूरी टीम, मतलब फिजिकली तो नहीं हो सकती लेकिन मेंटली डेफिनेटली हर एक मेंबर के दिमाग में यही चल रहा होगा कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट को कैसे कर रहा होगा। तो हम लोग तुमसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पेपर अपने को बहुत अच्छे से देना है। अगेन बेस्ट ऑफ लक पूरे मोदी स्कूल की तरफ से और सभी टीचर्स की तरफ से। हम लोगों को मतलब बिना डरे अपने आप पे कंट्रोल करते हुए पेपर करना है, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। ओवर टू विमल सर। विमल सर। कमलेश सर और विपिन सर ने बहुत सारा मतलब गाइडेंस दिया है। तो अभी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारी बातें जो है वो ध्यान से रखें, कोई जल्दबाजी मत करे। और पूरी मोदी स्कूल की टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। ऑल द बेस्ट। ओवर टू हित सर। हित सर। Dear students, am I audible? Wishing you all the best for JEE Advanced 2024. Don't stress, do your best, forget the rest, and wish you all the best. बता chat box में react करो all the best to everyone on behalf of entire team और अच्छे से पेपर फोड़ कर आना है. Once again wishing you all the best.